हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। डियर चिल्ड्रेन, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर is already there in the YouTube which I made before. So if you have not gone through the video, so first you watch the first part, then only you can understand the second part where I will explain you the sums given in the first exercise of NCERT math book from class 6th according to the latest syllabus 2023 and 24. So dear children, here we will learn how to write a number in Indian number system as well as international number system. जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो समझने वाले हैं सवाल को, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So what is the first question? The first question is here that 1 lakh equal to how many 10,000? So dear children, let's do the answer of this question that 1 lakh is equal to how many 10,000. So for this what we are supposed to do, we need to write 1 lakh in figure. Okay, तो ये हमने लिख दिया 1 lakh. You can see here 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh. So this is 1 lakh. Now what they are asking that 10,000. तो 10,000 हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से 10,000 को काउंट करेंगे। तो दिस इज 1, 10, 100, 1000 and 10,000. So this 0 is at the 10,000 place. That means this both digits will be here. तो we can write here कि 10,000 makes 1 lakh. ओके, तो कैसे मैंने आंसर निकाला है फिर से एक बार देखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000. तो ये आया 10,000 के प्लेस पर ना, तो इस इधर वाले जितने भी डिजिट्स हैं सबको हमें अंडरलाइन कर लेना है और जो भी होगा वो यहाँ पर लिख देंगे एंड दैट ओनली विल बी द आंसर. What is the second question? The second question is 1 million equal to how many? 100,000. So according to Indian number system, if you know the place value chart of Indian number system, then it is okay. If you don't know, then I will let you know, you don't worry. In international place value chart, here we have 1, then we have 10, then we have 100, right? Then we have 1000, then we have 10,000. So till here to it is same as well as till here in Indian as well as in international, till here this is same. But after 10,000 in Indian there is a lakh place, but here there is 100,000. Okay, then million, 10 million and 100 million, and after then billion, 10 billion and 100 billion, right? So what is the question? 1 million. तो फर्स्ट तो वी नीड टू राइट 1 मिलियन, है ना? तो 1 मिलियन, मिलियन का प्लेस कहाँ है? यहाँ है, दिस इज मिलियन. तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और बाकी को जो है वो 0 से रिप्लेस कर देंगे. सो चिल्ड्रेन, दिस इज 1 मिलियन. इसको पढ़िए आप, 1, 10, 100, 1000, 10,000, then 100,000 and then million. So this is 1 million. The 1 million I have written. Now we need to write that 1 million में कितना 100,000 होता है. So children, again we will do the same thing here also. From the right side we will count 100,000 में कहाँ तक आता है, कहाँ पहुँचते हैं हम लोग, ये हम लोग इस तरफ से काउंट करेंगे. ओके, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. तो इसमें भी 100,000 कहाँ आया, यहाँ आया. तो ये क्या करेंगे, दोनों को अंडरलाइन कर देंगे. इधर अगर और भी डिजिट होता तो उसको भी कर देते. एंड हियर वी विल राइट 10. ओके, सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10, 100,000. आई थिंक जो मैं बता रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन. What is the next question? that 1 करोड़ इक्वल टू कितना 10 लाख होता है. तो 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है, इसे जानने के लिए फर्स्ट वी नीड टू राइट 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन नंबर सिस्टम. तो चलिए हम लोग यहाँ पर 1 करोड़ को लिख देते हैं. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and करोड़. So dear children, like this
वी कैन राइट 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ अपना बन गया। चलिए एक बार मैं फिर से काउंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये इंडियन नंबर सिस्टम में मैंने लिखा है क्योंकि इधर में इंडियन नंबर सिस्टम था, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल में कि ये कितना मिलियन हो रहा है, राइट। तो नाउ वी विल काउंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो क्या डिफरेंस है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। तो चलिए काउंट करते हैं कि मिलियन कहाँ तक पहुँचता है अपना। तो ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड दिस इज द मिलियन प्लेस, राइट। तो फिर हम लोग इसको जो है वो बॉक्स में कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, राइट। एंड इसका आंसर शायद मैंने छोड़ दिया है, 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है। तो आई थिंक ये भी 10 लाख होगा। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन हो गया। 1 करोड़ में कितना मिलियन हो गया बच्चों, 10 मिलियन हो गया। मैं आपको बता दूं 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 लाख हो जाएगा। 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़ होता है ना। तो ये हो गया अपना, राइट। नाउ वी नीड टू राइट 1 मिलियन में कितना लाख होता है। तो सबसे पहले 1 मिलियन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, देन 100,000 एंड देन मिलियन। सो दिस इज 1 मिलियन। अभी 1 मिलियन में कितना लाख होता है ये जानने के लिए लाख वाला डिजिट तक हम लोग पहुंचेंगे फ्रॉम द राइट साइड। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये देखिए लाख हो गया। इसको सर्कल कर दीजिए, कितना हो गया 10। तो ये देखिए ऐसा यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे के सारे आंसर 10 होंगे, लेकिन आप रट करोगे ना, रट लोगे आंसर को तो इससे काम नहीं चलेगा। जो चीज़ मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप इसके आंसर को अगर समझोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड एनी क्वेश्चन आंसर जो भी दिया है सभी का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट। अब आइए हम लोग दूसरे वाले को समझते हैं जिसमें हमें क्या करना है, वर्ड में दिया हुआ है और इसे फिगर में लिखना है, यानी कि नंबर्स में लिखने हैं। बच्चों यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा ना वो ट्रिक अगर आप सीख जाते हो ना तो फिर आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी और इस टाइप के सवाल को आप आसानी से कर पाओगे। क्या मैं बताने वाला हूँ आप वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 73 लाख है ना, 73 लाख मतलब दिस इज द हाईएस्ट प्लेस, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे। अच्छा 73 में कितना डिजिट होता है, 2 डिजिट होता है। 2 डिजिट का मतलब हुआ 10 लाख और अगर 1 डिजिट होता तो सिर्फ लाख। इसी तरह से अगर 1000 में 2 डिजिट आएगा तो 10,000, सिंगल डिजिट आएगा तो 1000 तक जाएंगे। और करोड़ का भी यही है, 10 आने मतलब 2 डिजिट आने से 10 के प्लेस तक जाएंगे और सिंगल डिजिट आने से सिर्फ करोड़ या लाख इसके प्लेस तक जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक हमें आना है 10, 73 लाख है ना, तो 10 लाख तक आना है। तो सबसे पहले ऊपर में मैं डॉट दे दूंगा, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो मैंने प्लेस यहाँ पे जो है वो डॉट से इंडिकेट कर दिया है। अब हमें सिर्फ फिल कर देना होगा बच्चों 70। अच्छा ये क्या करोड़ तक मैंने दे दिया है क्या, एक मिनट। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है ना। ये 2 मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ पे, ये करोड़ तक मैं चला गया था, इस दोनों को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी क्या है 73 लाख, तो 73 में तो ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो ऑलरेडी 2 डिजिट है तो हमें 0 यहाँ पे नहीं लगेगा। 73 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। उसके बाद क्या है 75,000। अब देखिए लाख के बाद तो 1000 ही का प्लेस आता है, तो ये भी देखिए ये भी हमें चेक कर लेना होगा। अगर कोई प्लेस बीच में स्किप हो गया है तो उसको हमें 0 से फिल करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो 75,000 को वी विल राइट हियर 75। उसके बाद क्या है 307, तो 307 और इसके बाद कॉमा लगा दीजिए। सो दिस नंबर इज 73,75,307। अब आइए इसको हम लोग जानते हैं 9 करोड़ 5,41,000। तो करोड़ 9 करोड़ में कितना डिजिट है, सिंगल डिजिट है। तो हमें सिर्फ करोड़ के प्लेस तक जाना है, हमें 10 करोड़ के प्लेस तक नहीं जाना है। इस बात को आप याद रखोगे, है ना। तो ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
एंड करोड़। ओके, तो करोड़ तक आगे अब हमें जो है वो सिर्फ 9 करोड़, यानी कि करोड़ में सिर्फ एक डिजिट है और ये पहले आ रहा है, तो हमें जीरो का इसमें कुछ काम नहीं करना होगा। अगर बीच में आता तो जीरो से फिल करके हमें इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। 9 करोड़ के बाद क्या है 5 लाख। अब देखिए करोड़ के बाद तो लाख का प्लेस आता ही है, तो फिर इट इज़ ओके, लेकिन अगेन इन 5 लाख देयर इज अ सिंगल डिजिट एंड हाउ मेनी डिजिट्स वी वांट, 2 डिजिट्स। तो 5 लाख को क्या करेंगे 05 लिखेंगे, 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे 05 लिख देंगे, है ना। और उसके बाद क्या है 41। अब देखिए लाख के बाद होना चाहिए था 1000 का प्लेस, है ना, लेकिन 1000 का प्लेस यहाँ पर है ही नहीं, सीधा आपका 1 वाला प्लेस चला गया, 1 10 100 वाला जो प्लेस होता है ना, पीरियड होता है। तो 1000 वाले को हमें 0 से फिल करना होगा, दोनों डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1000 वाला फिल हो गया। अभी 41 में 3 डिजिट होता है, फर्स्ट पीरियड में भी ऑल नो कि 3 डिजिट्स होता है, लेकिन 41 में सिर्फ 2 डिजिट है, तो एक हमें 0 से फिल कर देना है। ये 0 हो गया, फिर 4 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया 9 करोड़ 5 लाख, उसके बाद 00 आ जाएगा, 1000 नहीं है इसमें, 041। तो ये हो गया वर्ड में आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इसे वर्ड, पहले तो आपको कॉमा देना है अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, और कॉमा देने के बाद हमें आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन, और नेक्स्ट वाले में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉमा से सेपरेट कर दें। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं और उसके बाद 2 डिजिट करके होते हैं, ये एकदम कंफर्म है, राइट। फर्स्ट पीरियड में ऑलवेज यू कीप 3 डिजिट और उसके बाद 2 डिजिट करके। अब देखिए ये 1 वाला पीरियड हो गया, ये आपका 1000 ना, 1000 वाला हो गया, ये लाख हो गया, और ये करोड़ के पीरियड में है। तो करोड़ के पीरियड में क्या है 8 है, तो 8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 करोड़ हो जाएगा। ओके 8 करोड़, ये थोड़ा लाइट पेन है तो मैं डार्क ले रहा हूँ। तो 8 करोड़ के बाद क्या है लाख वाले पीरियड में 75 है, तो 75 लाख हो गया, है ना। उसके बाद देखिए 1000 वाले पीरियड में 95 है, तो 95,000 हो गया। ओके वेरी सिंपल है ना। एंड 762 762 को यहाँ लिख दे रहा हूँ 62। ओके तो 8 करोड़ 75 लाख 95,762 ये हो गया अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। अब आइए इसको हम लोग को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल करना है। तो इंटरनेशनल में क्या होता है ना, सभी पीरियड्स में देयर आर 3 डिजिट्स होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। फ्रॉम द राइट साइड 3 डिजिट्स को काउंट कीजिए और कॉमा दे दीजिए। तो सबसे जो इधर वाला पीरियड है फर्स्ट बोलिए इधर से, और इधर से आएंगे तो लास्ट, उसमें 2 ही डिजिट है अपना, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया 1 वाला पीरियड, ये 1000 वाला, और 1000 के बाद इसमें लाख नहीं होता है, इंटरनेशनल में क्या होता है मिलियन होता है। ओके तो मिलियन में क्या है अपना 99 है, तो ये क्या हो जाएगा 99 मिलियन से स्टार्ट ही होगा, 99 मिलियन है ना, तो 99 मिलियन हो गया। उसके बाद क्या है 985, और कौन सा पीरियड है ये 1000 वाला है, तो 985 ओके तो 85, हाँ नीचे में दिख जाएगा 85,000। ओके और यहाँ क्या है 102। ओके 100 एंड क्या है इधर TWO2। तो ये देख लीजिए, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज था अपना NCERT बुक का वो कंप्लीट हो गया है। दो आई हैव नॉट डन ऑल द सम्स
बिकॉज देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है जो आपको चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। चिल्ड्रेन, अगर आप इतना को समझ जाते हो ना तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। जो सवाल छूट गए आप आसानी से कर लोगे, और इसे करो, प्रैक्टिस करो। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, देन आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। कोई भी पर्टिकुलर सवाल नहीं हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मुझे मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। सो चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।